वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वॉर बिटवीन इजराइल एंड फ़लस्तीन ड्यूरिंग वार। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। इजराइल के जेल में भाई छोटे छोटे बच्चे भी बंद रहते हैं। तो भाई ये है वॉल जो कि इजराइल और पैलेस्टाइन को भाई अलग करती है। पैलेस्टाइन की जो गाड़ी है वो इजराइल के अंदर नहीं जा सकती, लेकिन इजराइल की जो गाड़ी है पैलेस्टाइन के अंदर आ सकती है। बेसिकली ये गेट है। तो अगर भाई प्रॉब्लम होती है तो इजरायली फोर्सेस यहीं से आती है, पत्थरबाजी यहाँ पर होती है इजरायली फोर्सेस के ऊपर। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नए वीडियो का स्वागत करता हूँ। फिलहाल भाई मैं हूँ इस वक्त पैलेस्टाइन के अंदर, पैलेस्टाइन के बेथलेहेम सिटी के अंदर हूँ। बेथलेहेम सिटी भाई वैसे क्रिश्चियंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट सिटी है, क्योंकि यहाँ पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। बेथलेहेम सिटी में भाई मोस्टली पैलेस्टीनियन रहते हैं और मोस्टली जो लोग हैं पैलेस्टीनी में वो भाई मुस्लिम हैं। फिलहाल भाई मैं मार्केट में घूम रहा हूँ और मेरे साथ जो हमारी होस्ट है रोजाना, और साथ में भाई सेल्फी भी जा रही है। हम डिस्कवर कर रहे हैं इस एरिया में, घूम रहे हैं। एक्चुअली बाजार सा है। Hello brother, how are you doing? How are you? I'm good. You good? Where are you from? India. Welcome. Welcome. Palestinian. Palestinian. What's your name? Subham. Subham. Yeah. Muhammad. Mohammed. Nice to meet you, Mohammed. Meet you. And you. India. She's also from India. Meet you. Thank you. From India too. Come malum. Come. Come. Soy. Malum. أنا بحكي عربي شوي. شرفونا. حياك الله. Ramadan nice day. Ramadan Kareem. Shukran. Very good night. Very good night. Very good night. It's already night now. Yeah. So people in here, do they speak very good English or very bad English here? How did you see my English? How was my Your English is great. Oh, thank you. But other people Other like, people, we speak English very well. because it's a touristic city. It's a what? Because it's a very touristic city, but a lot of people come here Yeah. for tourism here. That's why. Yeah. In other part of Palestine where tourists don't go, also people But speak still, we learn English at school. at school. Okay. So, Same like India. Yeah. Almost many people they speak the language here. Okay. भाई ये है रोजाना, and I told her name in Hindi means every day. Every day. Yeah. Rosanna. In Arabic, it means the window of love. The window of love. Yeah. Okay. Wow. What a beautiful name. Thank you. And what's the meaning of your name, Salvi? Off the land. Of the land? Yes. No. Off my land. Off my land. तो भाई फिलहाल हम लोग इसी मार्केट में घूम रहे हैं और भाई मजे आ रहे हैं इस एरिया में। भाई लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं, स्पेशली इंडियंस के प्रति यहाँ पे काफी अच्छा प्यार है। Here, China is raiding the market. China? Yes, you'll find lots of stuff, lots of things that you can buy, lots of items for very cheap prices. And they come from China? They come from China, yes. Okay. Chinese माल। Toys, shoes, Yeah, the things. fake Nike. In fact, see, मैंने लहसुन खरीदी है भाई. It's Yeah. also from China. Yeah. Each part of this, just for 10 shekels. 10 shekels Yeah, just for 10 and made in China. Yeah. Hi brother, how are you doing? Salam alaikum. Ramadan Kareem. चलो भाई चला जाए इस एरिया में। कैसा है इस एरिया? मैंने कहा कि चाइनीज एरिया है, जरा इस चाइनीज एरिया को देखा जाए। स्ट्रॉबेरी, yes. 10 shekel where this expenditure. 3 shekel 10 shekel on this picture. and this picture. 10 shekel, yeah. 3 shekel for the picture. I can delete the picture then. Strawberry. No, thank you. 1 kilo? No, 1 kilo no. तो भाई मजाक में बोल रहे हैं 3 सेकंड लगेगा फोटो का, मतलब 60-70 रुपए। मैंने कहा फिर डिलीट कर देता हूँ, बोलता नहीं, छोड़ दो। The real Palestinian. And is it expensive than Chinese one? Yeah, more expensive, but this one is better, of course. Local. Local. It's a local. और ये सब्जी मार्केट है यहाँ पर, और ये कुछ ऐसा दिख रहा है भाई यहाँ पर आसपास का नज़ारा। तो फिलहाल भाई रोजाना हमें लेके जा रही है एक वॉल की तरफ। आपको जैसा पता है कि भाई जो वेस्ट बैंक है, या तो पैलेस्टाइन बोल लो आप, हिंद। हेलो Asking you for a picture. हेलो, सलाम वालेकुम। هلا कैफा हालुक? الحمد لله. अल्हम्दुलिल्लाह। وين بنزل هذا؟ हिंद, इंडिया, وين بنزل هذا؟ यूट्यूब। يوتيوب؟ या لا شو وقت عشان يطلع لي؟
إيهاب سمارة من مخيم العزة. عربية يا بس ما أنا بعرف حكت معي ما هي. إيهاب سمارة أنا معلم. على راسي. चलो समझ में नहीं आया क्या बोला तो अच्छा लगा. What you were saying? He's asking you what is your YouTube channel. Okay. Watch himself. Okay. I don't understand anything. Introducing himself, saying my name is. This one. I don't Okay. know what's his name. Okay. सलाला में भी. Exactly, something like that. Okay. ये भाई एरिया यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है जिसे मैंने बताया कि वेस्ट बैंक का भाई 60% एरिया इजराइल कंट्रोल करता है. 60 नहीं 82% मान लो कि 18% एरिया पैलेस्टाइन है. तो आप ऐसा मान के चलो कि 82% एरिया. एक तो भाई इजराइल इतना छोटा है. इजराइल की मन्नत के भाई इतना छोटा सा वेस्ट बैंक आता है तो पैलेस्टाइन आता है. और भाई उस पैलेस्टाइन में भी भाई 80% मान के चलो एरिया कंट्रोल करता है. 82% एरिया कंट्रोल करता है भाई इजराइल. तो 18% एरिया में ही सारे मोस्टली पैलेस्टाइन रहते हैं. इसी 18% एरिया में भाई हम लोग बेथलेहम में है जहाँ पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था. अपने पिछली वीडियो में देखी होगी. उसी 18% भाई रमाला भी, उसी 18% में नबलूस भी है भाई. उसी 18% में एक साउथ में और सिटी है. वो 4 सिटी है भाई बड़ी बड़ी यहाँ पे. बड़ी मतलब यहाँ की सिटी की जो है भाई 2-3 लाख 4 लाख लोग रहते हैं. इनके लिए ये काफी बड़ा हो जाता है. तो भाई वो हमें लेके जा रही है एक वॉल की तरफ, क्योंकि जो भी अदर एरियाज हैं भाई जो कि इजराइल कंट्रोल करता है उन्होंने बड़ी बड़ी वॉल बना रखी है. जो ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना है ना इस वॉल के सामने फेल है. तो आपने एक फेमस सी लाइन सुनी होगी कि मेक हुमस नॉट वॉल. तो हम वहीं पर जा रहे हैं. कैसा वो वॉल है, वो कैसा एरिया है. तो हमें भाई अब लोकल गाइड मिल गए हैं, हम जा रहे हैं. हालांकि ये गाइड नहीं है, हमारी होस्ट थी. तो उन्होंने कहा कि आपको मैं घुमाती हूँ बेथलेहम के अंदर. तो हम लोग इसके साथ घूम रहे हैं फिलहाल. तो भाई ये है बेथलेहम यूनिवर्सिटी और एक्चुअली पैलेस्टाइन के अंदर सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी आती है. भाई बेसिकली जो मेरे सामने आप चीजें देख रहे हो वो एक्चुअली जेरूसलम के अंदर आता है. हाउ फार इज बेथलेहम टू जेरूसलम? We are right now. Yeah. It's less than a 10 minutes walk. 10 minutes walk to Jerusalem? Yeah, less than a 10 minutes walk. तो भाई एकदम जेरूसलम और बेथलेहम जो है एकदम भाई साथ वाला सिटी है. एकदम साथ आप अलक्सा मॉस हैं सब कुछ वहाँ पे देख सकते हो. लेकिन भाई जब मैं कल रमाला से बेथलेहम आ रहा था भाई तो भाई वहाँ पे 2 रोड्स हैं जो कि भाई जेरूसलम आता है. लेकिन जेरूसलम भाई इजरायली कंट्रोल एरिया में आता है. तो जो टैक्सी ड्राइवर था भाई साहब हमें वो घुमा के लेके आया भाई. काफी लंबा 2-3 घंटे लगे भाई. जनरली भाई 40-50 मिनट की ड्राइव होती है. वो भाई पैलेस्टाइन टेरिटरी से होके आया तो 40-50 मिनट की जगह भाई 3 घंटे लग गए. तो यहाँ पे जो रोड है भाई उनका भी डिवीजन हो रखा है कि ना भाई ये इजरायली लोगों ने रोड बनाया है. हालांकि पैलेस्टाइन के अंदर बनाया उन्होंने रोड, लेकिन इजरायली ने बनाया है तो हम इजरायली यूज करेंगे. हम लोकल लोगों को यूज करने नहीं देंगे, हम पैलेस्टाइन को यूज करने नहीं देंगे. तो यार बहुत सारी जो चीजें हैं ना, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है इस कंट्री में कि बात करना मुश्किल है. एक तरफ की बात सुनो तो दूसरी उसकी तरफ दया आती है, दूसरी तरफ की बात सुनो तो फिर उसके लिए दया आती है. तो यहाँ पे मसला इसलिए सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि भाई एक कॉम्प्लेक्स रीजन नहीं है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रीजन है. तो भाई ये है भाई पैलेस्टाइन का मैप. Is it like Israeli map mixed together? Yeah. An Israeli map? Yeah. No, this is just the map of Palestine. It's not the West Bank, right? No, it's. All. I would call it Palestine. Yeah, you will call it Palestine. तो भाई ये जो है भाई पैलेस्टाइन मतलब कि ये वाला जो पार्ट देख रहे हो छोटा सा पार्ट इस तरफ जो कटा हुआ दिखा नहीं रहा भाई मैप में, लेकिन वो आता है. टेक्निकल बात करें कंट्रोल की तो मोस्टली इजराइल कंट्रोल करता है, कुछ पार्ट पैलेस्टाइन कंट्रोल करता है. मैंने आपको भाई सारे वीडियो में बता रखा है कि क्या इजराइल है क्या पैलेस्टाइन है. हाँ बट यहाँ के लोग इसको पूरे इजराइल उनको पैलेस्टाइन ही बोलते हैं. उनको पहले इजराइल बोलना पसंद नहीं है. खुद के कंट्री में रिफ्यूजी बन चुके हैं. लेट्स क्रॉस भाई. यहाँ पे रोड क्रॉस करना भी एक बहुत बड़ी बात है. लेकिन रिफ्यूजी से याद आया भाई कि हम लोग फिलहाल अभी जा रहे हैं एक रिफ्यूजी कैंप. सो इन बेथलेहम देयर 3 रिफ्यूजी कैंप, राइट? 3 refugee camps, yes. Now we're going to enter one of them. It's called the Lazda camp. Lazda camp? Yes, the Lazda camp. Okay, Lazda camp. Where the refugee came from? So these were the people who were kicked out of their lands in 1948. 1948, okay. Yeah, and they came here to Bethlehem, and now they live here. Now they live here. Okay. So I'm really confused with all the Arabic flags. Look very same. Yeah, wait. Jordan, UAE. Jordan, they have a star here in the triangle. There's a star in the triangle, okay. Yeah, it's the same. ये है भाई पैलेस्टाइन का फ्लैग. कुछ ऐसा दिखता है भाई. बड़ा ही कंफ्यूजिंग फ्लैग होता है भाई क्योंकि सब सेम भाई सारे अरब कंट्री के एक्सेप्ट सऊदी अरेबिया. आई थिंक एवरी अरब कंट्री इज सेम. Yeah. Saudi Arabia is very different. All green with the sword. With the sword, yeah, and Allah Akbar sign. yeah, with the Allah Akbar sign, right. तो भाई चला जाए इस एरिया में. ये भाई रिफ्यूजी कैंप. ये भाई कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं इंडिया में आ गया हूँ. थोड़ा इंडिया की मुझे याद दिला रही है और कुछ ना कुछ मुझे इजिप्ट की याद दिला रही है भाई. अस्सलाम वालेकुम. हिंद, इंडिया.
India. Viva India. I Salam. love India. Love you too. I love it. Hindi. Where are you from? America. And she is also from India. أنا لعيب هذا حديد. عربي. لسه عربي. أنا بلعب جمباز. هذا عربية. هذا عربي. ये बोल रही है कि मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं भी इंडिया से हूँ। Proud. चलो भाई चलता हूँ भाई, ठीक है? Like falafel? No falafel, no. Later maybe. I just eat now. Yo, you are Muslim? No, I'm Hindu. This is a woman Arabic, not Indian. This is Umar Arabic. Yes. تشبه العربية. Okay, I'm The same. proud to be an Arab. Proud. Proud Arab. How do you know she's Arabic? How do you know? Yeah, how do you know? وينك عربية؟ What? What did you say? The same, the Arabic. The same? face. Ah, the hair color? Yes. Yeah. Yeah. لا أنا بورجيك فيديوهات بعدين. Yeah. See, in India too. You are not Yes, Indian. yes, yes. You want to India black. बोल रहे भाई तुम इंडिया से नहीं, इंडिया के लोग ब्लैक होते हैं, ये व्हाइट है। أخي. But you are अखी, حبيبي. أخي brothers. brother, yes. how old are you? I'm 23 years old. 23. Yes. You. I'm 23. How old are you? I am 20. She's 32. No problem. No problem. 18. Okay भाई चलो, चलता भाई, बाय बाय। ओ भाई गिरियो मत, गिरियो मत। Safe. Be safe. Have a good one भाई। Goodbye. Bye. तो भाई छोटा जो बच्चा दिख रहा है भाई, ये इजराइल के जेल में बंद था। तो ये बता रही है कि यहाँ इजराइल के जेल में भाई छोटे छोटे बच्चे भी बंद रहते हैं। ये थोड़ा आई थिंक ह्यूमन राइट के खिलाफ है यार, कि आप बच्चों को जेल में नहीं डाल सकते। हालांकि यहाँ पे बच्चों को मोटिवेट किया जाता है पत्थरबाजी और चाकू खोपने के लिए। तो यार बड़ा मैंने बताया कि बहुत ही कम्प्लेक्स, अगर आप दोनों साइड की स्टोरी सुनोगे ना तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कौन सही है कौन गलत। आपको लगेगा दोनों का दोनों सही है, फिर आपको लगेगा दोनों का दोनों गलत है। तो ये सारी चीजें भाई यहाँ पर हो रही है, तो डिसाइड करना मुश्किल है भाई। और इस पर पिछले मैं यहाँ डिसाइड करने नहीं आया हूँ कौन सही कौन गलत। मैं यहाँ घूमने आया हूँ, लोगों से मिलने आया हूँ और लोगों पे खुशियाँ बांटने आया हूँ। तो यही मेरा यहाँ पे आने का मोटिव था। यहाँ मैं किसी पॉलिटिकल रीजन से या किसी एक पार्टी को सपोर्ट या ना सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। फिर भाई ये जो वॉल है वो कोई नॉर्मल वॉल नहीं है, ये भाई पैलेस्टाइन और इजराइल को अलग अलग करता है। भाई इस तरफ भी वॉल है, इस तरफ भी वॉल है। चला जाए भाई इस तरफ वाले वॉल में इधर क्या है। और भाई यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा भाई बड़े बड़े वॉल्स हैं, क्योंकि भाई पैलेस्टाइन और इजराइल को अलग करता है। ये वॉल आई थिंक इजराइल ने बनाया। हु मेड दिस वॉल, इजराइल और पैलेस्टाइन? Israel, of course. इजराइल। ओके। और जरा चल के देखा जाए इतने बड़े बड़े वॉल्स को। They claim that it's for protection, for their protection, but it's restricting the freedom of Palestinians, the freedom of movement. Yeah, because she was telling me you can't go to Israel easily, No, I need a permit. you need a permit. भाई मतलब इनका बात सुन के बहुत बुरा लगता है कि यार अपने देश में ही रिफ्यूजी बन गए, अपने देश में ही कहीं नहीं जा पा रहे। क्योंकि भाई 1948 के पहले यहाँ कोई इजराइल नहीं हुआ करता था, यहाँ पर सिर्फ पैलेस्टाइन हुआ करता था। अब भाई इजराइल बन गया और लैंड ले लिया। अब कैसा लगेगा भाई कि आपकी जमीन छीन ली गई किसी पुराने प्रॉमिस्ड लैंड रिलीजियस बुक की वजह से, और फिर बोला गया कि आप अपने घर से जाओ और भाई अपने घर वापस भी नहीं आ सकते। थोड़ा इनकी भी स्टोरी सुननी चाहिए। तो भाई ये है वॉल जो कि इजराइल और पैलेस्टाइन को भाई अलग करती है। कितनी लंबी आप देख सकते हो। और भाई यहाँ पर आप बैठ के ले सकते हो। भाई इसे ऐसा बनाया गया है कि उसके भाई वॉल के उस तरफ जेरूसलम है, ले आकर जेरूसलम में आप आ गए हो। ये देखो भाई ऐसा है हिसाब किताब। और वॉल को कहीं छेद करके दिखाया गया कि उस तरफ जेरूसलम है, जो भी भाई इनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है। राइट नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गो टू जेरूसलम, राइट? After 6 October? It was hard from before the war, but now with the war it's even harder. Harder and impossible, yeah. Yeah, harder and impossible. तो भाई ये पूरा वॉल है। That side is Jerusalem, right? Yeah. तो भाई ये देख रहे हो नॉट ओनली फ्लॉयड याद हल्ला तू। तो भाई आपको पता होगा कि जॉर्ज फ्लॉयड कौन था, जो भाई अमेरिकन ब्लैक पर्सन था जिसको भाई पुलिस ने मारा था। इसको भाई ये भी डिसेबल पर्सन था, तो भाई पुलिस के क्वालिटी में मर गया भाई ये। इसलिए भाई इसको इसका भी यहाँ पे एक साइन बना हुआ है और पूरा एकदम साइन बना हुआ है इस वॉल में। और बहुत बड़ा बड़ा भाई वॉल बना रखा है इन्होंने, काफी लंबा है भाई। मैं चलते जा रहा हूँ वॉल तो खत्म ही नहीं हो रहा, इतना बड़ा उन्होंने वॉल बना रखा है अभी। और भाई उस तरफ हो जाता है इजराइल और इस तरफ है भाई पैलेस्टाइन, और मैं हूँ इस पर खड़ा पैलेस्टाइन के अंदर। तो गाइज यहाँ पर फिर हम लोग बैठे हुए वॉल के बस भाई पास ये मेरे पीछे भाई वॉल्स सारे। और थोड़ी ठंडी लग रही थी भाई, तो थोड़ा ताप लूँ मैं यहाँ पे। ये भाई साहब एक्चुअली व्हाट्स योर नेम ब्रदर? Habesh. हवेश।
ये भाई साहब, मैंने कहा कि भाई आप भारतीय लग रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं भारत से ही हूँ। तो मतलब मैंने कहा कि आपको हिंदी आती है? फिर उन्होंने कहा नहीं, मुझे हिंदी नहीं आती, क्योंकि मेरे जो दादा परदादा है, दादा हैं, जब इस्लामिक चला था तो ये यहाँ पे आ गए थे, पैलेस्टाइन के अंदर आ गए थे, तो ये पैलेस्टीनियन है। तो मैंने कहा आप अरब तो नहीं, फिर तो आप इंडियन हो? उन्होंने कहा हाँ। तो ये लिख रहा है भाई यहाँ पे, हम लोग बैठे हुए हैं, और ये भाई पैलेस्टीन इलाका है, और ये भाई मेरे पीछे वॉल है। चलो अभी जाके वॉल को और देखते हैं और इस शहर को और देखते हैं। तो भाई उस तरफ है जेरूसलम, ये देखो इस तरह वॉल यहाँ से स्टार्ट होता है और इस तरह भाई घिर के वॉल तक जाता है। तो एकदम वॉल भाई काफी कर्वी वॉल है। और या भाई यहाँ से आप इजराइल का फ्लैग भी दिख सकता है। इस तरह भाई आपको पैलेस्टाइन का फ्लैग दिखेगा, लेकिन उस तरफ सिर्फ इजराइल का फ्लैग है। तो ये काइंड ऑफ भाई आप मान लो इजराइल पैलेस्टाइन का बॉर्डर है, क्योंकि ये एरिया ए में आता है। दिस इज एरिया ए, राइट? दिस इज एरिया ए। तो एरिया ए मतलब यहाँ पे पूरी जो अथॉरिटी है, सिविल और सिक्योरिटी मैटर्स, यहाँ की लोकल गवर्नमेंट जो कि पैलेस्टाइन, व्हाट इज द नेम ऑफ द गवर्नमेंट? PLO, राइट? PLO, Palestinian Authority. Palestinian Authority. LGBT is nasty. This is where we draw the line. Split stronger than your walls. Don't stop me now. So चलो भाई यहाँ पे आके लिख दूं सब्सक्राइब टू नोमैड शुभम। भाई वैसे बता दिया, अगर सब्सक्राइब करना चैनल भाई, बस एक क्लिक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी दबा देना। ट्रेडिशनल यूट्यूब चीजें होती है। फिलहाल भाई मैं छोटे छोटे इलाके से जा रहा हूँ इस वॉल्स को देखते हुए। ये भी काफी इंटरेस्टिंग था भाई वॉल्स। भाई ऊपर मेरे जो ऊपर दिख रहा है वहाँ पे इजरायली फोर्स है जो काइंड ऑफ टॉम बना हुआ है। आई होप भाई मुझे वो ऊपर से स्नैपर चला के गोली ना मार दे मुझे। मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई, बस वीडियो बना रहा हूँ, मैं इंडिया से हूँ, बता दूँ आपको पहले ही। हाँ, गोली वगैरह नहीं मार देना मेरे को, कोई भरोसा नहीं भाई। डर लगा रहता है पैलेस्टाइन के अंदर कि कभी भी आके भाई इजरायली फोर्स रेड वगैरह करेगी और किसी को गोली मार देगी। पैलेस्टाइन लिखा रखा है भाई लोगों ने। तो भाई जो लड़की आप देख रहे हो, इसको एक्चुअली जब बचपन में थी तो इजरायली सोल्जर्स के अगेंस्ट काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह करती थी। तो भाई मतलब रेसिस्टेंस के प्रति ये एक आइकॉन बन गई और इसका भाई ये काफ़ी फेमस है इस एरिया में फिलहाल तो पैलेस्टाइन के अंदर। मेक हुमस नॉट वॉल्स, एक दूसरा साइन भाई मिल गया है, मेक हुमस नॉट वॉल्स। वॉल्स आर मींट फॉर बॉम्बिंग। भाई मतलब क्या इंटरेस्टिंग से लिखे हुए है भाई, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वॉल था। ये भाई वॉल छोटा सा नहीं, काफ़ी बड़ा सा वॉल है। आप चलते जाओगे ये वॉल ख़त्म नहीं होगा। मेक जूस नोट वॉल्स, अलग अलग चीज़ें लिखी हुई है भाई। और भाई मुझे इसने एक और बात बताई भाई कि यहाँ पर जो पैलेस्टाइन की जो गाड़ी है वो इजराइल के अंदर नहीं जा सकती, लेकिन इजराइल की जो गाड़ी है पैलेस्टाइन के अंदर आ सकती है, जो कि थोड़ा मतलब आयरॉनिक है एकदम। पता नहीं, एकदम हाइपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है भाई। ये कहीं ना हाइपोक्रेसी लग रहा है भाई कि ये वाली कार जा सकती है उधर, ये वाली कार इधर नहीं आ सकती। वाह। भटकने के लिए भाई ये मान के चलो कि आप जो वेस्ट बैंक है वो काइंड ऑफ इजराइल है। इजरायली फोर्स जब मन करती है तब भी किसी जगह में घुस जाके रेड करती है, जिसको भी मारना होता है उसको मार देती है, और कभी कभी भाई साहब बेकसूरों की भी जान चले जाती है। तो भाई साहब एक बात और चलिए पता, ये जो आप देख रहे हो बेसिकली ये गेट है। कोई भी अगर भाई प्रॉब्लम होती है तो इजरायली फोर्सेस यहीं से आती है और लोग उनके ऊपर पत्थर वगैरह फेंकते हैं। पत्थरबाजी यहाँ पर होती है इजरायली फोर्सेस के ऊपर, क्योंकि इजरायली फोर्सेस भाई इधर आने की इजाजत है कि भाई ये अलग देश है, मतलब अलग देश या अलग रीजन बोलो आप, ये पैलेस्टाइन है। तो इजरायली फोर्सेस जब आती है भाई कोई रेड मारने के लिए तो लोग उनके ऊपर पत्थर फेंकते हैं। तो आप वो ऊपर वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, उससे भाई वो गंदे जो नाली के जो पानी होते हैं उनसे फेंकते हैं लोकल लोगों पे कि पत्थरबाजी थोड़ा कम करें एंड अच्छी खासी मात्रा में आते हैं। तो यही जो भाई एग्जैक्ट पॉइंट है जहाँ से सारी चीज़ें स्टार्ट होती है भाई। तो भाई यहाँ पर एक घर है, बेसिकली यहाँ पे जो सारा सिचुएशन होता है वहीं पे भाई गेट है जिससे कि इजरायली फोर्सेस आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन एक बंदे का जो घर था भाई, इसने बोला कि यार इतने प्रॉब्लम्स हो रही है भाई, मैं यहाँ रहूँगा ही नहीं। तो भाई उसने घर बना रहा था, ऑलमोस्ट भाई घर फिनिश हो गया था, बट भाई साहब बोले चलो भाई हो गया मेरा, मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो ये उन्होंने बिना अपने घर को उन्होंने छोड़ के चले गए यहाँ से वो। और भाई यहाँ पे जो चीज़ें बनी हुई है काफ़ी एकदम मीनिंगफुल, डीप मीनिंग है भाई। जैसे कि ये भाई बार वायर के साथ खेल रही है, ये भाई बार वायर के ऊपर बैठी हुई है, तो वेरी डीप मीनिंग भाई, काफ़ी डीप मीनिंग है भाई इन सब चीज़ों का। मतलब क्या ही बताऊँ, यहाँ पे जब दोनों पक्षों की जब बात सुनता हूँ तो यार आंखों से आंसू आ जाते हैं कि रोना जाता है कि यार क्या चल रहा है यहाँ पर। ये तो बहुत बेकार चीज़ें हो रही है जो भी यहाँ के अंदर हो रही है। लोग एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, यहाँ पे ह्यूमैनिटी पता नहीं खत्म हो गई है। बहुत सैड बात है यार ना। आप टीवी पे देख के ना सपोर्ट करना किसी देश को कि चलो भाई मैं इजराइल सपोर्टर हूँ, मैं पैलेस्टाइन सपोर्टर हूँ, ये आसान हो जाता है भाई। लेकिन जब आप यहाँ पे आके लोकल लोगों की बातें सुनते हो, लोकल लोगों की आंखों में आंसू और बर्बरता देखते हो, तो फिर समझ में आता है कि भाई आदमी रहा ही नहीं भाई। आदमी पता नहीं क्या हो गया, जानवर से बदतर हो गया। हम लोग तो एक दूसरे के खून करने पे तुले हुए हैं। ये भाई ऐसे बड़े बड़े यहाँ पे होटल्स हैं, सेंट माइकल होटल भाई। ये पहले पैलेस हुआ करता था, अभी एक होटल बन चुका है। ये दिख रहा है कुछ भाई ऐसा होटल, वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली। Yeah, from the inside it's more
beautiful. So can we go inside or no? No, it's closed. It's closed. It is a palace or hotel? It used to be a palace. Yeah. It's called Qasr Dar Jasser, which means Dar Jasser. It's a Palestinian family from Bethlehem. Okay. They own this place. Now it's called Fundak Qasr Jasser, which is a hotel. Fundak means a hotel. Hotel. Okay. तो भाई वापस से एक रिफ्यूजी कैंप आ गए हम लोग फिलहाल अभी लखैया दरवाजा नाम करके भाई ये प्लेस है। भाई आप चाबी देख रहे हो यहाँ इतना बड़ा चाबी, ये भाई एक्चुअली चाबी क्यों बनाया गया जरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो भाई जब 1948 में जब पैलेस्टीनियन को भगाया गया वॉर में, जब वो भागे तो सारे भाई अपनी घर की चाबी लेके आए थे कि जब वापस जाएंगे तो आप वापस अपने घर पे जाएंगे, लेकिन बेचारे कभी जा ही नहीं पाए और इसी रिफ्यूजी कैंप में ही रह रहे हैं, तो इसलिए चाबी है। ऑल्सो डू पीपल हैव लाइक देयर ऑन होम की दे पुट हियर? Yeah, some people do. They still have the keys. They still have the keys? Hopes that one day They will go back to home? Yeah. Let's see. तो भाई ये सेफ दिखा रहे हैं आपको, ये काफी ओल्ड है। और भाई ये है वॉल जो कि पैलेस्टाइन और इजराइल को अलग करती है, जो वॉल मेरे सामने दिख रही है वाली, यहाँ पे जो है वॉल, और ये हिसाब किताब है यहाँ पर ऐसा, और यहाँ पे लिखा हुआ है वी विल विन। तो भाई जो कि ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे बताया गया है कि जो जूस हैं भाई या तो जो इजरायली के लोग हैं वो भाई तीनों तरफ से पानी पी रहे हैं, और भाई पैलेस्टाइन के लोग बेचारे पानी के बाल्टी लेके खड़े हैं, पानी मिल नहीं पा रहा है इनको। So तो you भाई can see, we Palestinians for water, do you see these tanks? Up टैंक्स, the top? या On the rooftop? या यस, So that's how we keep the water. on the tank. Yeah. Okay, and where do we get water from? From the Israelis, but so because they don't give us enough, Okay. or they don't like we Give it we every can't day. have access, everyday access to it. We just keep it with these. दिस तक या तो भाई यहाँ पे टैंक यूज करते हैं क्योंकि इनको रोज का रोज एक्सेस नहीं मिलता। इजरायली इनको पानी देता है क्योंकि पानी टेक्निकली इनका ही है, बट इजरायली पानी देता है और वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। ये देखो भाई, He's painting with one arm, Yeah. no arm. He's painting with his mouth on a kite with one arm. जो ग्रेफाइट वगैरह बनी हुई है, काफी सैड है। वेलकम टू पैलेस्टाइन। أهلا وسهلا بفلسطين الجميلة الحلوة. अहला सलबिल, أهلا وسهلا. अहला वसहला। أهلا وسهلا, which means welcome Okay, بفلسطين in Palestine. अहला वसहला with جميلة, it means beautiful. yes, It okay, also means beautiful. beautiful, okay. तो भाई वॉल और रिफ्यूजी कैंप से घूम के आने के बाद फिलहाल भाई हम लोग वॉक कर रहे हैं सिटी सेंटर की तरफ। अच्छी खासी एकदम ठंड हो रखी है भाई, मेरे हाथ एक्चुअली जम रहे हैं। यहाँ पे भाई माउंटेन एरिया है तो रात को चीज़ें ठंड हो जाती है और दिन को वेदर ठीक ठाक रहता है, मतलब आप घूम सकते हो, लेकिन रात को थोड़ा ठंड हो जाता है। ये कुछ ऐसा एरिया है भाई यहाँ पर। यहाँ की जो बिल्डिंग्स है भाई एकदम मुझे लगता है कि गोल्डन सिटी लगता है, क्योंकि सारी जो बिल्डिंग है काफी गोल्डन है। और भाई मेरे उस तरफ जो दिख रहा है आपको सारे घरे वगैरह वो आता है भाई जेरूसलम के अंदर, सारा भाई जेरूसलम है वो एरिया। तो टेक्निकली यहाँ से जो जेरूसलम है भाई कम दूर है और सिर्फ आप 5-10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में आप जेरूसलम बेथलेहम से पहुँच सकते हो। तो जेरूसलम और जो बेथलेहम है भाई लोग यहाँ पे डेली ट्रिप भी कर सकते हैं। अगर आप जेरूसलम आ रहे हो तो भाई वॉक करके भी आप 1 घंटे में 40 मिनट में पहुंच सकते हो, मतलब सिटी सेंटर जेरूसलम से लेके बेथलेहम सिटी सेंटर 40-50 मिनट की वॉक होगी, आप पहुंच सकते हो। फिर भाई बस दे सकते हो, बस भी भाई टेक्निकली 4-5 लोकल करेंसी लगेगी आपको और आप आ जाओगे भाई बस से 10-15 मिनट में। तो काफी आना ईजी है बेथलेहम। भाई अगर आप जेरूसलम आ रहे हो तो भाई बेथलेहम आना मत भूलना, क्योंकि बेथलेहम बेसिकली पड़ता है पैलेस्टाइन में और जेरूसलम भाई पड़ता है इजराइल के अंदर। This road called, What is this road called? the road that we're walking, it is called Shara al-Quds al-Khalil. सारे अल-कुल खलील। Road, it means street, the street of Bethlehem and Hebron. हाँ, the street of Bethlehem and Hebron. No, sorry, because it means Jerusalem, Khalil, which means Hebron. Why is it called like that? Because it connects Jerusalem, Bethlehem, and then to Hebron. Hebron. So if you keep walking straight like this, you'll go to Hebron. Hebron, If you okay. keep walking straight like this, you go to बेथलेहम, जेरूसलम। ओके। और भाई हेब्रोन मेरा जाने का प्लान है, आप अगली वीडियो में आने वाले वीडियो में देखोगे। हेब्रोन भाई काफी रिलीजियस प्लेस है फॉर ऑल रिलीजन्स। आई थिंक हेब्रोन इज आल्सो रिलीजियस प्लेस फॉर यू गाइज, राइट? फॉर आल्सो फॉर क्रिश्चियन, mostly for Muslims. मोस्टली फॉर मुस्लिम्स, Yeah. बिकॉज आई थिंक Prophet Ibrahim is dead, like he had a qabr there. Tom. Yeah, tomb of the Prophet Ibrahim. Yeah, but you guys don't believe in Prophet Ibrahim or what? We do. You do, but it's not really that religious though. We do. We just do.
ओके हाँ, तो टेक्निकली भाई ये सारे लोगों का रिलीजियस प्लेस है क्योंकि प्रॉफिट इब्राहिम है जो वहाँ पे उनका कब्र है। तो आपको भाई आने वाले दिखाएंगे। फिलहाल भाई मैं आ रखा हूँ सिटी सेंटर की तरफ और ये कुछ ऐसा इलाका है भाई, एकदम काफ़ी सही दिख रहा है भाई। पैलेस्टाइन के अंदर रोड क्रॉस करना ईजी बात नहीं है, तो गट्स चाहिए। तो ग्रीन क्रॉस यला यला हबीबी। वेल गाइस, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपसे मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। भाई मेरा इंस्टाग्राम में नोमैड से अगर आप फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लेना। आज के लिए भाई इतना ही। ये था भाई पैलेस्टाइन का इलाका। आपको भाई अगली वीडियो में साथ थोड़ा मैं दिखाऊंगा यहाँ की नाइट लाइफ वगैरह कैसी होती है। और भाई मैं चलूंगा फिर हेब्रोन की तरफ। साल के लिए बाय, मिलता हूँ अगली वीडियो में। बिल्कुल यार, एक काफ़ी बेस्ट व्लॉग था जो कि एक वाल की तरफ जाना और चीज़ें जो है ना एक्सप्लेन करना। लेकिन एक भाई की बात वो ठीक है कि हम इधर एक बैठ कर कोई इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है, कोई फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि पता तब भी चलता है जब जाकर वहाँ जो लोकल है उनकी बातें सुने। सोशल मीडिया पर और है और वहाँ पर रियलिटी और है। उधर की भी बातें सुने, इधर की भी सुने, तब आपको एक रियलिटी का पता चलेगा। लेकिन आज का व्लॉग ये है कि काफ़ी एरिया उन्होंने एक्सप्लोर किया है, क्योंकि इस साइड कुछ ऐसा नहीं है, मतलब होगा काफ़ी एक सख्ती ज़रूर है, लेकिन जो एक गज़ा है ना उधर एक जा भी नहीं सकते एक भाई। तो इधर का उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं और लोगों से भी मिल रहे हैं। लोग अच्छे हैं, एक फ्रेंडली हैं, काफ़ी एक वेलकम करते हैं जो भी एक आता। और जब वो इंडिया का बताते हैं तब तो यार वो और ज़्यादा सही बात है। लेकिन काफ़ी चीज़ें भाई एक हार्ड भी उधर चल रही हैं, क्योंकि एक मतलब कि लाइफ थोड़ी सी ना एक बहुत हार्ड है। एक दोनों साइड से तो नहीं बोल सकते, लेकिन जहाँ पर थोड़ा सा इधर गाज़ा में इशू चल रहा है ना, उधर थोड़ा सा हमास वाला सीन है, क्योंकि उधर एक हमास एक्टिव है और वो थोड़ा सा एक मतलब के बॉर्डर साइड पर, और उधर चीज़ें ना काफ़ी एक हार्ड चल रही हैं। लेकिन कुछ एरिया हैं जो पे मतलब के फ़लस्तीन रह रहे हैं अपना, मतलब कि उधर ये वार वगैरह नहीं चल रही। लेकिन जब भी थोड़ा सा इशू होता है ना, तो एक मतलब कि इजराइल मतलब कि कुछ चीज़ें आप नहीं कर सकता एक्टिविटी जाकर उधर, मतलब कि जैसा कि एक पत्थरबाजी का बता रहा है। तो ये एक रियलिटी है, इसमें मतलब कि कोई छुपी हुई चीज़ें नहीं है कि बंदा छुपा कर चले कि ये चीज़ें नहीं हो रही। बाकी सब कुछ उधर भाई चल रहा है और ये एक चलता रहेगा आगे लॉन्ग टाइम तक, चाहे जो भी हो जाए। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वहाँ पे बेसिक चीज़ ये देखनी होती है कि अब लोग सरवाइव किस तरह कर रहे हैं, जो कि क्यों एक मीडिया के ऊपर या एक हम पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं कि वहाँ पे हालात एक बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन इस आप जिस तरह भाई वहाँ पे गए हैं तो चीज़ें कुछ जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आ रही हैं। हाँ, कुछ एक एरिया होगा जहाँ पे एक बहुत हद तक जो है ना, जहाँ पे वो अल शिफा एक हॉस्पिटल है या उस साइड के ऊपर गजा साइड के ऊपर चीज़ें काफ़ी एक ख़राब हुई होंगी। लेकिन ये कि एक बॉर्डर के करीब या एक वाल के करीब लोग काफ़ी एक अभी तक भी एक सही रह रहे हैं। मतलब बाकी जो हालात हैं ज़ाहिर बात है, जिस तरह उन्होंने वाल के ऊपर या वो चीज़ें किसी वक्त भी वो एंट्री लेके आना और आगे से पत्थरबाजी या ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं, वो तो एक मुझे लगता है रूटीन वर्क है, या मे भी एक जो ना अब थोड़ा कम हो गया होगा या कम होता होगा। लेकिन ये कि बिल्कुल उनकी बात ठीक है कि आप उस साइड के ऊपर जाएँ तो उनके मसले मसाइल हैं, इस साइड के ऊपर आएँ तो उनके मसले मसाइल हैं, दोनों तरफ। लेकिन वहाँ पर डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सही है कौन गलत है। लिहाजा आप जो एक लाइफ है ना उनकी काफ़ी भाई एक हमें डिफरेंट देखने को मिली है। लोग वहाँ पे रह रहे हैं और एक खाने पीने की चीज़ों का जिस तरह यहाँ पे सुना जा रहा है कि एक इशू वहाँ पे बहुत हाई लेवल पे चल रहा है, तो एक इस साइड के ऊपर नज़र नहीं आया। और यहाँ पे तो बिल्कुल एक मंडियाँ लगी हुई हैं और उसके अलावा वो चाइना से जो बता रहे थे कि चाइनीज़ मार्केट है या बाकी भी सारी बातें होंगी, लोग भी एक अपनी एक परचेज़ वगैरह कर रहे हैं और रह रहे हैं। मैं भी आगे जाके कुछ चीज़ें नज़र आएँ, लेकिन यहाँ तक तो नहीं। एक रिलीजियस मतलब के प्लेसेस को लेकर ना उधर काफ़ी एक मतलब के एक छेड़छाड़ होती है। आप देखो ना, एक दोनों साइड ही बराबर है। अब मतलब के एक जूश भी, क्रिश्चियन भी, मुस्लिम भी, तो एक इकट्ठा एक रिलीजियस भी। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि एक फसाद की जड़ हर दफ़ा हो जाती है। अब देखो ना, जो भी मतलब के एक कंट्रीज़ वगैरह लड़ती है खास करके, वो एक रिलीजियस बेस पर काफ़ी एक उनका है कि तो ये एरिया जो है ना ये स्टार्ट से ही मतलब कि एक रिलीजियस बेस पर फाइट बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।